So last time we discussed about psychological testing and group testing, right? Everything we have covered. Today we will be talking about your individual interview or personal interview, right? Which is the third pillar of your SSB assessment. Agreed? Any questions till now? Any issues till now? Okay, then we are good to proceed, right? Now understand what is the reason for conducting a personal interview. Personal interview कराने की जरूरत क्यों पड़ी? ग्रुप टास्क में देख लिया ग्रुप में कैसे ऑपरेट करते हो, साइकोलॉजिकल से देख लिया कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कैसी है, दिमाग कैसे चलता है, कुछ उल्टे सीधे थॉट्स तो नहीं है, कुछ ग्रेव मिस्टेक तो नहीं है तुम्हारे साथ, राइट? एग्रीड? सो अब एक पर्सनल इंटरव्यू करते हैं टू नो द पर्सन वन टू वन, आमने सामने, टू चेक फ्यू थिंग्स, कुछ पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन डाल के, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाल के, कुछ ऐसी सिचुएशंस में डाल के कि जहां पे तुम सोच ही ना पाओ या फिर काफी हार्ड हो जाए सोचना, एंड देन हाउ यू रिएक्ट और गिव योर आंसर्स. So let's see one-on-one experience, how does it happen? Agreed? So for that your personal interview comes into the picture. Agreed? So your personal interview generally lasts from 30 minutes to 1 hour. In some exceptional cases it is 20 minutes, and in some exceptional cases it is 1 hour plus. But generally it is around 45 minutes to 50 minutes. Agreed? Right? And like there's a reason why it is of 45 minutes. It's not like you'll go and they will push you to something. For some people it is kind of bit stressful, for some people it is a very smooth ride, or like whatever is asked to you, you give the answers very easily. Or if officer want to know something from you but you are not giving the right answer, or you don't know what to say, then they will press it hard. They will try to know what you actually mean or what is actually inside your heart, right? जो मुझे जानना है तुम डायरेक्टली बता दोगे, मुझे कोई इशू नहीं है. बट सपोज तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं जानना क्या चाह रहा हूँ, एंड यू आर गोइंग लेफ्ट एंड राइट, तो फिर मैं थोड़ा पुश करूंगा, थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या फिर थोड़े पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चंस, या फिर कुछ हार्ड क्वेश्चंस, या फिर कुछ अजीब डिफरेंट आई वोंट कॉल इट वियर्ड, बट डिफरेंट क्वेश्चंस आई विल आस्क यू टू नो. Right? So generally when your interview start, what will happen? You will be told कि यार आपका interview किस दिन होगा, be it first day, second day, third day. And for interview you have to dress formally. What is formal? Your pant, shirt. If you have a tie, well and good. It is appreciated tie in summers. But if it is winters, you can wear a coat and formal shoes. Black shoes, brown shoes, whatever you have. But if in case आपके पास ये कपड़े नहीं है, just try to wear normal clothes, shirt, pant and shirt, right? Try to arrange them, borrow them from your friend. But don't go into the interview in jeans, sport shoes, sneakers, t-shirt, right? Fancy belt, fancy watch. Don't wear watch in your interviews. And you won't get to know कि आपके 40-50 मिनट चले कब गए. So you will be told on which day your interview will happen. So be it first day, second day, third day, fourth day. You'll be ready. आपको बता देंगे भाई कौन से रूम में इंटरव्यू है, 1 2 3 4. आपके आगे वाला जाएगा, वापस आ जाएगा. After 5 minutes you will be asked to go. Then how to greet and enter. Before entering, 2-3 times, tuck tuck tuck. Then just open a gate slightly. That's it. May I come in, sir? Or may I come in, ma'am? If she is a female officer, okay, they'll ask you to, yeah, please come. You'll go inside. So अगर ऐसे रूम है, आपने एंटर करा, चेयर यहाँ पे और यहाँ पे असेसर बैठा है, so जाओ और चेयर के साइड में खड़े हो जाओ, right? Straight body, straight. Because आप जब PIQ फॉर्म भरते हो, PIQ नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, we'll discuss about PIQ. जब हमारा पीपीडीटी फेज 1 क्लियर हो जाता है तो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, पीआईक्यू फॉर्म भरवाया जाता है हमसे, छोटा सा 2 पेज का आगे पीछे का. उसमें हमारा हाइट, वेट, सब चीजें लिखवाई जाती है और वो इंटरव्यूअर के पास होता है. एग्रीड? सो जब इंटरव्यूअर आपने लिखा हुआ है कि यार माय हाइट इज 6 फीट 2 इंच
and my weight is 80 kg, 70 kg, 120 kg, right? तो असेसर अपने माइंड में एक इमेज बनाता है कि 6 फुट का आदमी होगा, 120 किलो का है तो थोड़ा हेल्दी होगा, 60 केजीज का है तो थोड़ा लीन होगा, राइट? सो अपना जो वेट है ना वो लेटेस्ट लिखना है, ये मत लिखना कि इंटरव्यू देने आज जा रहा है और वेट 4 साल पुराना लिख दिया. सो ही हैज अ image in his or her mind about you. Then you enter, you stand next to a chair, you greet them, ki good afternoon sir, good afternoon ma'am, right? So you'll greet them, you'll tell means ki good afternoon, good evening, whatever it is. Then they'll ask you to sit or have a seat. उससे पहले मत बैठना. Let them say कि please have a seat. When you sit, be in the upright posture. जैसे अभी मैं आराम कर रहा हूँ, आप सब भी आराम कर रहे हैं, because our back is touching the back, rest, support of the chair. But no, sit straight, chest out, hands on your knees, straight. Then officer will start, very easily with you. कि how are you, कैसे आए, कैसा चल रहा है, फर्स्ट टाइम आए हो इस सिटी में. ये बहुत कॉमन रेपो बिल्डिंग के क्वेश्चंस होते हैं दैट यू विल फील कंफर्टेबल एंड गुड. यही 5-10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा. अच्छा फैमिली में कौन कौन है, दे विल आस्क यू सिंपल थिंग्स. ओके कैसे आए, लाइक एयरप्लेन से आए थे, ओके कैसे कैसे आए जर्नी बता दो. ट्रेन से आए थे तो ट्रेन से कैसे कैसे आए, कौन सी ट्रेन थी, कितने डब्बे थे. जस्ट रैंडम क्वेश्चन. ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके कैसे आंसर्स है, बट वो आपसे इनिशियली ऐसे बहुत बेसिक लेवल पे बात करेंगे टू make you feel comfortable, right? So that you feel good. And when you will feel good, then they will start increasing your level. They will ask you CIQs. What is CIQ? Comprehensive information questionnaire. Now what is CIQ? There are 7 type of CIQs. Means 7 लंबे सवाल होते हैं ओपन एंडेड, जिनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर नहीं होता. लाइक आपने पढ़े भी होंगे, एंड आई शेयर इट विद यू, कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद था वो बताओ, कौन से टीचर पसंद थे, कौन से टीचर नहीं पसंद थे वो बताओ. उसके बाद अभी क्या कर रहे हो, मार्क्स कितने थे तुम्हारे 10th में, 12th में, बीटेक में कितने मार्क्स थे, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या करते हो, स्पोर्ट्स क्या करते हो, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, ये सब चीजें तुमसे पूछेंगे. अंडरस्टूड? नाउ ये क्वेश्चंस आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो. प्रिपेयर करने का ये मतलब नहीं है कि आप बोलना शुरू कर दो कि आई वाज इन क्लास 8 इन दिस ईयर एंड आई वाज 10th में मैं ये कर रहा था, 12th में ये कर रहा था, ये नहीं. बट हैव अ क्रक्स आइडिया कि अगर मुझसे पूछा कि मेरा फेवरेट टीचर कौन था, तो वो फेवरेट टीचर जो था, एक तो उसका नाम, और वो फेवरेट क्यों था, राइट? अगर फेवरेट सब्जेक्ट था, सपोज यू से कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो क्यों था? कि मेरे टीचर अच्छे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. कि ऐसा भी हो सकता है कि सर आई लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड आई फाइंड लॉजिक इन मैथ प्रॉब्लम्स. या फिर सर मुझे आई नेवर एंजॉयड मैथ्स. व्हाई व्हाट वाज द रीजन? सर इट वाज वेरी सिंपल, माय टीचर वाज नॉट वेरी गुड, so I never developed an interest towards mathematics, or I felt the teacher was bit biased toward other students. Then he will ask, how, why do you feel this? So don't give these type of answer. Give simple answer कि either I had the interest, that's why I liked the math subject, या फिर मुझे सब्जेक्ट इसलिए पसंद नहीं है कि सर मुझे कभी ज्यादा एक्सपोजर मिला नहीं, या फिर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था ज्यादा इजीली, जिनमें ज्यादा फॉर्मूला इंटेंसिव थी. बट हाँ, मैं नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था, बट जहां जिनमें ज्यादा फॉर्मूलाज लगते थे, मुझे वो सॉल्व करने में इश्यूज होते थे, राइट? दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल से. अच्छा टीचर क्यों पसंद थे? सर वो टीचर काफी फ्रेंडली थे, वो खाली ये नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बट सब्जेक्ट से ज्यादा हेल्प भी करते थे जेन्युइनली. अच्छा कोई टीचर पसंद क्यों नहीं था? कुछ बी इट एनी रीजन कि सर उनका जो टीचिंग स्टाइल था मुझे ज्यादा लाइक मैं समझ नहीं पाता था. ही वाज फेवरेट ऑफ अलॉट, बट देयर वर फ्यू who like never felt very understood, और क्लास में समझ नहीं आता था, तो दैट्स व्हाई. मेरा कुछ हेटरेड नहीं है, आई डोंट हेट हिम. इट्स नॉट कि आई हेट हिम, इट इज जस्ट दैट आई डोंट हैव अ वेरी मच इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हिम और हर और टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट. When giving negative answers, or when saying negative about anything, keep your answers mellow, neutral. Don't be too extreme.
And when giving positive answers, then don't be sailing on the boat. कि यार sir वही teacher थे, उनके अलावा तो teacher ही नहीं है कोई. Just be simple. कि he was good or he or she was good because of these reasons, and he or she was not good because of these reasons. Keep yourself, think logically. Understood? Any issues till now? Good. So after this, officer will, ask you about your family, key family, like tell me about your family. What does your parent do? What about your mother, your brother, sister, siblings, their education, right? उनके साथ कैसा bond है, and all of these kind of things. You have to tell them. So once you start telling them about this, he or she officer will surely ask you, मुझे अपने father के बारे में 2 negative बताओ, 2 positive बताओ, mother के बारे में 2 positive बताओ, 2 negative बताओ. Then don't be too harsh on your parents. Keep it simple. कि भाई मेरे सर पेरेंट्स मतलब फादर कभी गुस्सा करते हैं व्हेन आई ईट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, ओके है यार, सभी के पेरेंट्स करते हैं. आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना सर, मेरे फादर ये मुझे जो है ऐसे कर देते हैं. डोंट बी टू एक्सट्रीम, जस्ट बी सिंपल. मदर भाई पेरेंट्स है, आपका ध्यान रखेंगे ऑब्वियसली, तो कहेंगे भी आपको 2-3 चीजें. अंडरस्टूड? डू यू गाइस एग्री विद दिस? यस और नो? Yes. एग्रीड ना? Yes, sir. So keep your answers neutral when giving negative, and when talking positive, it's good to tell the positive parts. Yeah, right. Then the officer will ask, अच्छा पैसे चुराए हैं कभी? तुम कहोगे नहीं. वो कहेगा, अरे यार क्या बात कर रहा है, मैंने तो बहुत चुराए हैं. When I was in school, officer will say about himself, try to fox you, कि when I was in school और college, मैं तो अपने फादर की पॉकेट से पैसे निकाल लेता था. They will, try to frame these kind of examples to you, but don't get fooled. He is just, trying to lure you, जिससे तुम सच्चाई बोलो कि हाँ सर मैंने भी एक बार चुराए थे. अरे यार फौज में चोर नहीं चाहिए भाई, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड. सिंपल. तुमने चुराए हैं तो रीजन भी बता देना, हाँ सर चुराए हैं, मैंने पढ़ने के लिए चुराए थे, इसके लिए चुराए थे. बट डोंट डू दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स. सेकेंड इज ऑफिसर विल आस्क कि तुम्हारा भाई बेस्ट फ्रेंड कौन है. अच्छा बेस्ट फ्रेंड है तो फिर उसकी क्या क्वालिटीज तुम्हें अच्छी लगती हैं. सो देयर वुड बी कुछ क्वालिटीज होंगी कि सर वो एंटरटेन काफी अच्छा करता है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है, या फिर ग्रुप में किसी को भी इशू हो तो ही और शी हेल्प्स अ लॉट. दिस काइंड ऑफ रीजनिंग यू विल गिव. देन दे विल आस्क यू यार उसकी एक नेगेटिव चीज बता. या फिर ऑफिसर विल आस्क यू कि तुम्हारे ग्रुप में कोई चोरी करता है. यू विल से नहीं सर मैं तो नहीं करता, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो चोरी करता है. अरे जस्ट द सिंपल थिंग इज, चोर का दोस्त चोर, सिंपल गेम. अगर तुम्हारा दोस्त चोर है तो तुम भी चोरी हो, राइट? कि तुम गलत को गलत नहीं कह रहे. सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स. प्रिपेयर आंसर्स. सर्च ऑन नेट, 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस, write those questions, write your answers or basic points around it, revise it every day, 5 minutes, 10 minutes. It will help you a lot. बैठो, फ्रेम करो दिमाग में, किसी ने सवाल पूछा तो कैसे जवाब दूंगा या कैसा सुनना चाहिए उसे. लिखो, राइट. By writing you will get clarity in your mind. Agreed? Anything? Any questions till now? No, sir. Anything else? Okay. So like आज की क्लास के लिए तो अभी इतना है, but now we'll have some general discussion. So I was planning to share a chapter of a book or 5-10 pages. So would you guys be interested in that chapter to go through it or read about it? It will, surely help you a lot. वो किताब. Yes, sir. Interested, sir. ठीक है, मैं फिर ग्रुप पे शेयर करूंगा, है ना, 1-2 PDF के पेज. विल ट्राई कि आप लोगों को बेस्ट हेल्प हो जाए. एग्रीड? एनीवन, एनी अदर इश्यूज? ठीक है, आई गेस वी आर गुड. Just start, prepare and write on group, yeah, your work, your VAT and TAT. I am there. I'll read. I'll do say every alternate day. I try to, give my feedback to all the responses and sentences you prepare. So prepare, it is for you only. I won't get anything, army won't get anything, government won't get anything. It is just you
who'll get something. And what is that? Your dream. That's why we are spending our days here, you know. You'll get something. Agreed? So we'll meet on Monday then. Monday, yeah, we'll meet on Monday. Saturday, Sunday off for me. It's a leave for me. But you guys have to prepare your VAT and TAT. तुम्हारे लिए कोई ऑफ नहीं है यार, जब तक अपनी मंजिल नहीं पाते तो मेहनत करो. उसमें पर्सनल इंटरव्यू की सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स सी यू गाइस. You guys have my contact. If in case you guys feel anything, just contact me over that WhatsApp number. I will try to help you and respond to you as early as possible, right? Okay then. Thank you. Thank you everyone. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.